Welcome back, students. In last lecture, we have discussed about the Staphylococcus aureus. We have started our second organism, Staphylococcus aureus, and we have discussed certain points about this Staph aureus, that is introduction, morphology, antigenic structure, cultural characteristics, and biochemical characteristics. Okay, so even we have discussed that what are the diseases associated with the Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, why the name is given, the morphology is like these organisms are arranged in a bunch like shape, grapes like shape. So that is the in a coca arrangement is there. Okay, that we have shown in morphology. In biochemical characteristics, we have discussed certain tests like IMVIC, catalase, oxidase, urease, etc. Then in antigenic characteristics or antigenic structure, we have discussed that what we have discussed the reagents or the things responsible to cause the disease which is present on the structure of the Staph aureus. So now in this video, in this lecture, we will go further, we will discuss certain points and we'll understand this Staph aureus more in detail. Okay, in this video we will see, yes, we will discuss the points like toxins and enzymes which are associated with the virulence factor. We'll discuss the pathogenicity also. So yes, here we go. We have first pathogenicity. Pathogenicity is that, what is the pathogenicity? Pathogenicity is responsible, it is the means how disease has been caused, that in what degree or in what extent the disease has been caused, that is the pathogenicity. Okay, now source of infections, we have first point, source of infection means how the infection is been carried out, what are the sources due to which this infection is been spread or infection occurs. So first is exogenous, that is externally, and second is endogenous, that is internally. Now exogenous, it includes patients or carriers, patients who are suffering from the disease. It may be any disease which is caused by the Staph aureus, like food poisoning or a skin infection. So these are the disease. The patient suffering from this disease may also transfer the disease to the other person, and carrier the same, means the patient suffering from the disease, it may carry the disease to the healthy person, and that healthy person will also get infected by the same disease. Okay, so that is the exogenous factor. It is also known as, means as exogenous and endogenous are there, in the same way अलग दो टाइप्स भी है, इन्फेक्शंस और एंडोटॉक्सिकेशंस. ठीक है, यहाँ क्या होता है इन्फेक्शन में, क्या होता है सबसे पहले, the cocci are there. Okay, it enters or it attaches to the damaged skin part. Okay, suppose now externally our skin is suffering from some infection, what will happen, this cocci, staph cocci will enter onto that infected part. After entering, what it will do, it will adhere or it will attach, the synonym for adhere is attach, it will attach to that part, means to the damaged skin, by the mucosal, onto the mucosal or tissue sites, means sticky sites, it will attach to this sticky site, and then it will colonize, means it will multiply and secrete its toxin. Okay, when it will secrete its toxin, the disease will spread, the disease will increase, that area will spread, the disease part will be spread. So this is the general mechanism how the staph, it attaches, it multiplies, and it spread to the parts, spread to the different parts onto the skin. Okay, so this is the exogenous, or we can say infection. And second, I have told you intoxication. ओके से एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस के अपार्ट मैं आपको बता रही हूँ, इन दोनों को छोड़कर मैं बता रही हूँ. पहले मैंने आपको बताया इन्फेक्शन में मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म बताया कि कोकाई आता है जहाँ एंट्री करता है, और जहाँ इन्फेक्टेड पार्ट है वहाँ पर वो अपनी कॉलोनीज मल्टीप्लाई करता है और फिर डिसीज स्प्रेड होता है.
दैट इज द इन्फेक्शन। सेकेंड मैं आपको बता रही हूँ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, द डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल टॉक्सिन, okay, means the toxin the bacteria produced, due to that the disease has been caused either in the infected host और परफॉर्म्ड इन विट्रो, डायरेक्टली वो होस्ट में होता है, डायरेक्टली पर्सन में होता है, या फिर इन विट्रो भी इन विट्रो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर वो बॉडी या होस्ट में रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द इंटॉक्सिकेशन। सेकेंड है एंडोजीनियस फ्रॉम कॉलोनाइज्ड साइट। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आप पेशेंट से करते हो, ओके, डायरेक्टली आप वो इन्फेक्टेड स्किन एरिया टच करते हो तो डेफिनेटली वो डिसीज आपके अंदर ट्रांसफ़र होना है, दैट इज़ द डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में एग्जांपल आता है फोमाइट्स। फोमाइट्स क्या होता है, सपोज किसी पेशेंट ने जो पेशेंट वो डिसीज से सफ़र कर रहा है, उसे स्किन इन्फेक्शन हुआ है और उसने वो दरवाजे का जो हैंडल है वो उसे हाथ लगाया है और हेल्दी पर्सन ने उसे आकर फिर से हाथ लगाए, वो दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाए, तो क्या होगा, जो ऑरियस वहाँ पर स्टक हुए हैं, इट विल गेट अटैच टू दैट हेल्दी पर्सन एंड द हेल्दी पर्सन विल गेट इन्फेक्टेड एंड इट विल सफर फ्रॉम दैट डिसीज। Second, it may happen due to the inhalation of the infected airborne droplets. Definitely, अगर कोई बंदा खांस रहा हो, इन्फेक्टेड पेशेंट कोई खांस रहा हो विदाउट एनी टेकिंग प्रिकॉशंस, उसने अपना माउथ कवर नहीं किया है, हैंकी नहीं लिया है और हेल्दी पर्सन उसके सामने है, तो वो ड्रॉपलेट्स उस हेल्दी पर्सन के अंदर थ्रू नोज और थ्रू माउथ ट्रांसफर हो सकते हैं एंड दैट हेल्दी पर्सन में सफ़र फ्रॉम द डिसीजेस। सो दिस आर द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड द सोर्स ऑफ द infection. Next point is virulence factor. Now in virulence factor there are two types. What are that two types? Cell associated factor are there and extracellular factor are there. क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सेल एसोसिएटेड फैक्टर मतलब जो बैक्टीरिया के सेल सरफेस में या फिर सेल के बगल या सेल के एकदम अटैच्ड प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल एसोसिएटेड फैक्टर। अगर इसका सिनोनिम देखा जाए तो इट इज़ द सेल कनेक्टेड फैक्टर, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा सेल्युलर फैक्टर क्या है? विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द सेल, these are related to that cell but not associated to that cell, that are the extracellular factors, okay। फिर उसमें कुछ enzymes included है, कुछ toxins included है, कुछ proteins included है, ऐसे टाइप्स है जो इनके अंडर आते हैं, ओके। सो हम एक डिटेल में देखेंगे। पहला है सेल एसोसिएटेड फैक्टर्स या फिर आप उसे कहेंगे सेल एसोसिएटेड पॉलीमर्स। तो पहला उसमें आता है कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड। अभी कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड, व्हाट इज द कैप्सुलर? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, okay, it is the outer covering of the cell and it gives the rigidity or toughness to the cell। क्या देता है वो? रिजिडिटी देता है, टफनेस देता है टू द बैक्टीरियल सेल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ 70 to 80% ऑफ द सिग्निफिकेंट क्लिनिकल आइसोलेट बिलोंग टू दिस कैप्सुलर सेरोटाइप, okay। So this is the capsular polysaccharide। कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकेन के फंक्शन समवॉट सिमिलर है, okay। At the same time we will discuss about the peptidoglycan। What this peptidoglycan do? As capsule it provides the rigidity and gives the integrity to the bacterial cell। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या करता है? इट एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट एंड इंड्यूस द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, ठीक है। क्या करता है ये? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अभी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है ये मैं आपको बता दूं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इट इज़ द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट enhances or we can say that complements the ability of antibodies and phagocytic cell to clear the microbes। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कॉम्प्लिमेंट सिस्टम काय हे पार्ट आहे, इम्यून सिस्टीमचं एक पार्ट आहे, रोगप्रतिकार शक्तीचं एक पार्ट आहे, जी काय करते? अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करते आणि जी फॅगोसायटिक सेल आहे, फॅगोसायटिक सेलला ॲक्टिवेट करते मायक्रोब्स किल करण्यासाठी। थोडक्यात ही इम्यून सिस्टमचं एक पार्ट आहे जी आपल्या बॉडीला बेनिफिशियल है, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सेकेंड नाम मैंने लिया साइटोकाइन का। साइटोकाइन क्या है? साइटोकाइंस आर द लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड्स दैट आर सिक्रीटेड बाय द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ओके। मतलब क्या? साइटोकाइंस एक प्रोटीन है
जो हमारी इम्यून सिस्टम सीक्रेट करती है। ओके, मतलब ये दोनों भी डिफेंस सिस्टम है, दोनों भी इम्यून सिस्टम के पार्ट्स है। तो ये दोनों भी इम्यून सिस्टम के पार्ट्स है। और अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट एंड इंड्यूसेस द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करेगा, इम्यून सिस्टम के पार्ट को एक्टिवेट करेगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तब साइटोकाइंस प्रोटीन सीक्रेट होंगे। Okay, so this is the function of the peptidoglycan. And what is the function of the polysaccharide? It gives the rigidity and integrity to the cell wall or to the cell. Next is teichoic acid. Teichoic acid क्या करता है, as I have told you in earlier video that teichoic acid is responsible to or it is main antigenic part which is responsible to cause the disease. Okay, it is the main antigenic structure. So teichoic acid it facilitates the adhesion of the cocci. मतलब क्या करता है, ये attachment करता है, attachment of the cocci. Okay, just a minute. Yes, it attaches. Okay, तो ये टिकॉइक एसिड क्या करता है, ये टिकॉइक एसिड इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस एंड दैट इज नोन एज द, एज इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द ऑप्सोनाइजेशन। ओके, ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या, फैगोसाइटिक सेल को इनएक्टिवेट करता है, फैगोसाइटोसिस होने देता नहीं है, यानी कि एंटीजन ये किल नहीं होता, और एंटीजन किल नहीं होता तो डेफिनेटली इट कॉजेज द डिसीज। Okay, so this is the main point. And the last point which has been there, adhesions, fibronectin binding protein, ये सब proteins के नाम हैं which are the cell associated proteins or which are associated with this polymer. Next is cell surface protein. Now cell surface protein which are present onto the cell. Okay, they are not associated, they are present onto the cell, which include protein A. Now protein A, the molecular weight of protein A is 42 kilodalton. Okay, मतलब सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये, 42 किलो डाल्टन मॉलिकुलर वेट है. इट इज़ फाउंड ऑन टू द सेल सरफेस and it has the ability to bind the FC region of the human antibody IgG. FC रीजन, दो रीजन्स होते हैं एंटीबॉडी के. FC रीजन होता है, जो नीचे का रीजन है वो FC है, और जो ऊपर का रीजन है वो FAB रीजन होता है. तो ये FC रीजन of the antibody, this what it does, this protein A, it binds to the down part of the antibody. Okay, so that why it bind to the down part of the antibody, so that जो प्रोटीन ए के स्पेसिफिक एंटीजन है वो ऊपर बाइंड हो सके, इसीलिए वो प्रोटीन ए जो है वो नीचे बाइंड होता है. ओके, आईजीजी एंटीबॉडी का जो नीचे का पाथ है वहाँ वो बाइंड होता है, और उसके बाद इट इंटरफेयर विद द फैगोसाइटिक एक्शन, इट इंटरफेयर विद द ऑप्सोनाइजेशन. Okay, it interfere with opsonization and ingestion of organism by PMN cell. अभी ये जो PMN सेल है, द फुल फॉर्म ऑफ PMN सेल इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल. क्या ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, दिस आर द टाइप्स ऑफ WBC. ओके, WBC के ये टाइप्स है. WBC क्या है, ये जो आपका सेकेंड पार्ट है इम्यूनोलॉजी, उसमें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे देती हूँ. WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, जिसे आप मराठी में पांढरी पेशी बोलते हैं. सो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल यह क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है फैगोसाइटिक के एक्शन में. प्रोटीन है, प्रोटीन है, इट इंटरफेयर विद द फैगोसाइटिक एक्शन. Okay, by PMN cell, that is WBC, it activates the complement system and डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है. अभी ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में यहाँ अपनी इम्यून सिस्टम, स्वतःचीच इम्यून सिस्टम ही स्वतःवरतीच अटॅक करते. ओके, स्वतःचीच इम्यून सिस्टम स्वतःवरतीच अटॅक करते आणि मग ऑटो इम्यून डिसीजेस प्रोड्यूस होतात. ऑटो इम्यून डिसीजेस म्हणजे स्वतःच्याच बॉडीने जनरेट केलेले डिसीजेस. ओके, दैट इज द ऑटो इम्यून डिसीजेस. तो ये एक्शन दिखाई जाती है ऐसे प्रोसेस में. It is immunogenic antibodies are found in patient with serious staphylococcus infection. तो ये सब प्रोटीन ए के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, विच इज एक्चुअली इट प्रिवेंट्स द ऑप्सोनाइजेशन and it binds to the protein A bind to the FC region of the human IgG antibody. So that is there.
सेकेंड इज क्लम्पिंग फैक्टर. क्लम्पिंग फैक्टर क्या करता है? क्लम्पिंग इट बाउंड टू दी, एक्चुअली इसमें जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व है वो है फाइब्रिनोजेन और फिब्रिन. ये दो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है या फिर दिस आर द सरफेस प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी कोगुलेशन. क्लम्पिंग फैक्टर मतलब ब्लड क्लम्प हो जाता है, ब्लड कोगुलेट हो जाता है, दैट इज द क्लम्पिंग फैक्टर. सो नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फैक्टर. एक्स्ट्रा सेल्युलर फैक्टर्स में आपके एंजाइम्स है, उसमें जो पहला एंजाइम है दैट इज दी कैटालेज एंजाइम. नाउ कैटालेज एंजाइम ऑल स्टेफिलोकोकाई प्रोड्यूस दी कैटालेज. हमने बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा अगर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं तो कैटालेज टेस्ट क्या आती है? पॉजिटिव आती है. ओके, सो कैटालेज विच कैटालाइजेज दी कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन. जब हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला है H2O2. ओके, जब इसके बबल फॉर्म होते हैं तो H2O फॉर्म होता है और O2 फॉर्म होता है. इसका H2O2 का स्प्लिटिंग होता है H2O और O2 में, वाटर और ऑक्सीजन में. ठीक है, सो दैट इज इट शोज द पॉजिटिव एक्शन. सेकेंड इज द कोगुलेज एंजाइम. कोगुलेज एंजाइम ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लॉटिंग ऑफ ह्यूमन. मैं आपको एक जनरल मैकेनिज्म बता देती हूँ. कोगुलेज एंजाइम, कोगुलेज एंजाइम क्या करता है? इट ब्रिंग्स क्लॉटिंग ऑफ ह्यूमन. ओके, coagulase enzyme clotting, it is responsible for the clotting of human, and this enzyme acts with CRF present in the plasma. CRF क्या है? CRF मतलब coagulase reacting factor. फिर से मैं रिपीट करती हूँ, coagulase reacting factor CRF, it is present in the plasma. अभी शायद आपके लिए प्लाज्मा ये वर्ड भी न्यू हो. ठीक है, प्लाज्मा क्या है? इट इज़ द कलरलेस पार्ट ऑफ द ब्लड और वी कैन से lymph. Okay, plasma is nothing but it is the colorless part of the blood or the lymph. So coagulase enzyme क्या करता है? क्लॉटिंग करता है और ये एंजाइम एक्ट होता है CRF फैक्टर को. CRF फैक्टर दैट इज द कोगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर जो प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. फिर ये CRF बाइंड होता है प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है और फिर प्रोथ्रोम्बिन जो एक प्रोटीन है वो प्रोथ्रोम्बिन इट कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन. और ये फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन ये दोनों क्लॉटिंग प्रोटीन से. ओके, दिस आर द क्लॉटिंग प्रोटीन्स एंड दिस इज द बेसिस ऑफ द कोगुलेज टेस्ट. ये कोगुलेज टेस्ट जो लैब डायग्नोसिस में यूजफुल है. Okay, so that this is the general mechanism that this enzyme brings clotting of human. Okay, clot, blood clot करता है, blood के clumps form करता है ये enzyme. It is responsible to cause the formation of the clumps. So that is the main just criteria of this coagulase. And there are two types, bound form और free form. Stuck form होता है और एक freely distributed form होता है. So that is there. And next is lipase. Lipase enzyme. It is एक्चुअली ये जो स्टेप ऑरियस है, दिस लाइपेज एंजाइम स्प्रेड ऑर्गेनिज्म इन क्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. मतलब क्यूटेनियस मतलब स्किन. ओके, ऑन टू दी स्किन और इन टू दी स्किन दोनों में इस एंजाइम का रोल है. और जो बाकी के एंजाइम्स इंक्लूडेड है दैट इज द डीएनएस, थर्मोन्यूक्लियस, स्टैफाइलोकाइनेज और फॉस्फेटेज. ये अपार्ट फ्रॉम दिस एंजाइम विच वी हैव डिस्कस्ड, द अदर एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट लाइक दिस डीएनएस, थर्मोन्यूक्लियस, स्टैफिलोकाइनेज एंड फॉस्फेटेज. स्टैफिलोकाइनेज में क्या होता है जिसे हम फाइब्रिनोलाइसिन भी बोलते हैं. ये क्या करता है? डिजोल्व फाइब्रिन थ्रेड्स. जो फाइब्रिन प्रोटीन है उसके थ्रेड वो डिजोल्व करता है. ब्लड क्लॉट हुआ है उसके थ्रेड्स वो डिजोल्व करते हैं और ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस को फ्री करता है, क्लॉटिंग से क्या करता है? निकाल देता है बाहर. दिस इज द एक्शन ऑफ द स्टेफिलोकाइनेज. इट डिजोल्व्स फाइब्रिन थ्रेड्स, दैट इज फाइब्रिन प्रोटीन थ्रेड इन द ब्लड क्लॉट and it allows staph aureus to free itself from the clots. So just that is there. और lipase तो मैंने आपको बता दिया कि it digests lipids. Okay, और क्या रोल होता है फिर? ये it digests the lipids and it allows the staphylococcus aureus to grow onto the skin surface. इसीलिए वो मोस्टली क्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस टिश्यू को डिसीज कॉज करता है या फिर इन्फेक्शन कॉज करता है. इसके अपार्ट बीटा लैक्टामेज भी है एंजाइम जो इट ब्रेक्स डाउन दी पेनिसिलिनेज. ओके, सो ये सब एंजाइम्स हैं जो आज हमने देखे, डिस्कस किए. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स विल डिस्कस दी फर्दर पॉइंट्स. ओके, थैंक यू.